Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you all doing today? कैसे हैं आप सब? Welcome to weekly mastermind show of Ask Abhishek Raj. Ask Abhishek Raj के weekly mastermind show में स्वागत है आप सबका. Let's all discuss. चलिए डिस्कस करते हैं how the markets have been in the last week. अब क्या करना है? पिछले कुछ दिनों में काफी volatile markets रही हैं. अच्छी खासी गिरावट आई, देन सडन बाउंस बैक. एक दिन तो मार्केट भी ऑलमोस्ट सारे दिन के लिए क्लोज था ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस विद एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो बीएसई वाज वर्किंग. सो बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स और बहुत सारा एक्शन भरा हफ्ता रहा. रेस्ट अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर यू वुड हैव एंडेड अप मेकिंग मनी. इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीकली शो आई हैड टोल्ड, I'd given you some stock picks where I had suggested you metals are going to blast off, metals are going to be the best performers of the week, and exactly same thing has happened. And some shares that I had shared, some stocks that I had shared with you, कुछ जो shares मैंने बताए थे आपको, for example Larsen and Toubro, हिंडाल्को, जिंदाल स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में सिर्फ और सिर्फ मेटल स्टॉक्स में ट्रेड ट्रिगर हुए एंड यू मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द लास्ट वीक इटसेल्फ. Having said that, let's get back to the screen. Let us see what we all have on cards for this week. इस हफ्ते में हमें क्या करना है, कैसे पोजीशंस मेंटेन करनी है. रिमेंबर, मार्केट्स बहुत ही क्रूशियल टाइम पे है. मंडे को जब मार्केट्स ओपन होंगी तो बहुत सारी चीजें होंगी जिनका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, मार्केट आवर्स के बाद जीडीपी डेटा आया. यूएस में एक एक राहत पैकेज, दी कोविड रिलीफ पैकेज हैज बीन passed from probably Congress, and then it's being now sent to the Senate. I mean, एक अपर हाउस से लोअर हाउस से पास हो चुका है, अपर हाउस में गया हुआ है. So we are expecting some stimulus packages in US economy. Apart from it, मंडे को जैसे ही हफ्ता शुरू होगा, we will have the auto sales numbers as well in place. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स की अपनी चीजें चल रही हैं. सो बहुत सारी चीजें हैं. एक नया महीना खत्म हुआ है, एक पूरा का पूरा महीना खत्म हुआ है. नाउ वी आर एंटरिंग द लास्ट मंथ ऑफ द इंटायर फाइनेंशियल ईयर. रिमेंबर, ये जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 का, इसका आखिरी महीना है. तो इस महीने जैसी भी चीजें आएंगी, this would be a kind of report card going to be for the entire financial year. तो सावधानी के साथ मार्केट्स को अप्रोच करना है और just follow the numbers, that's it. So having said that, let's not waste any more time and let's get back to the screen and see what we have on cards, how to play with the market, how to work on the markets for this week, how to manage your investment, what are the trades that you could be looking at. So let me share my screen. So पूरा हफ्ता more or less बहुत ही negative रहा. Nifty closed over 3% negative. Bank Nifty closed approximately 3% negative. IT was over 4% down. You remember I did tell you IT is bearish, pharmas are bearish, and all other sectors are kind of dicey. Only reality and metals are looking great, and some financials too. Bank Nifty, of course, is outperforming overall. I mean, Nifty itself. So अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि metal is the best performer of the week, 7.62% positive. Energy was flat to positive, reality was flat to positive, rest everything was negative for the entire week. So let me bring my highlighter. देखते हैं मार्केट कैसा रहने वाला है ना. अभी ध्यान रखने की चीज क्या है कि काफी वोलाटाइल मार्केट्स रहे हैं. तो अभी हम पहली बार निफ्टी जो है 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे काफी लंबे समय के बाद हमने क्लोजिंग देखी है below 20 days moving average. Bank Nifty is very close. I mean, it has also gone down below the 20 days moving average. तो अभी इस बार की एनालिसिस हम तीन तरह से करेंगे. हम निफ्टी को और बैंक निफ्टी को तीन तरह से देखेंगे. पहले तो हम सिंपल प्राइस एक्शन देखेंगे ना. टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये समझना. See, some people talk about indicators, some people talk about price and volume, some people talk about cycles and time cycles, price cycle, 10,000 things to be talked about. But again, remember, हमें देखना क्या है एग्जैक्टली. तो एक तो होता है रॉ डेटा. फॉर एग्जांपल, प्राइस एंड वॉल्यूम. व्हाट स्टॉक मार्केट गिव्स यू? स्टॉक मार्केट ओनली गिव्स यू प्राइस एंड वॉल्यूम. प्राइस मींस ओपन हाई लो क्लोज, किधर खुला, कहां हाई था, कहां लो था और किधर बंद हुआ. एंड द वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ द क्वांटिटी ट्रेडेड. इसके अलावा जितनी भी चीजें हम देखते हैं, चाहे वो बॉलिंजर बैंड्स हो, आरएसआई हो, एडीएक्स हो, मूविंग एवरेजेस हो, एनी टेक्निकल इंडिकेटर दैट वी लुक एट, दे आर डिराइव्ड आउट ऑफ दीज प्राइसेस.
सो इस बार की एनालिसिस हम 3 फेजेस में करेंगे। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, प्राइस और वॉल्यूम प्ले नो इंडिकेटर्स, and then we will look at what are the indicators saying. See, understand, indicators are kind of report card. For example, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले हमारा सिम्टम पूछता है, हाँ भैया किधर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, and then he gives you some tests to be done. So टेस्ट में रिपोर्ट्स आती हैं, there are different kind of like कुछ ECG वगैरह चार्ट वार्ट देखता है, वो भी इंडिकेटर देखता है. Basically they are the indicators from where he's trying to connect or validate the theory of the actual price action. सो प्राइस एक्शन, वी एज ए ह्यूमन, हमारे को दर्द हो रहा है कहीं पे स्पेसिफिक जगह पे, तो उसकी जो जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि चलो ये वाले टेस्ट में शायद समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है. तो हम प्राइस एक्शन को इंडिकेटर से वैलिडेट करते हैं, इंडिकेटर से प्राइस एक्शन को वैलिडेट नहीं करते हैं. ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर आपको 10 टेस्ट दे देगा, उसमें से जिधर भी प्रॉब्लम आई चलो जी इसकी ट्रीटमेंट करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता. हम पहले सिम्टम को समझते हैं और सिम्टम के बेसिस पे डायग्नोस्टिक्स या ट्रीटमेंट की तरफ चाहते हैं. सो इन द सेम वे सबसे पहले हम प्राइस एक्शन को समझेंगे, दूसरे हम इंडिकेटर्स को समझेंगे, एंड देन वी विल लुक एट द स्ट्रेंथ पार्ट ऑफ द मार्केट. सो नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी. तो ये रहा सिंपल प्लेन निफ्टी का प्राइस और वॉल्यूम चार्ट. मैं थोड़ा सा इसे साइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मेरे को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है चार्ट्स को देखना. तो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट अच्छे हैं. आई विल कॉल इट न्यूट्रल फॉर वेरी सिंपल रीजन. कैंडल तो बुलिश है, बट जितना बड़ा कैंडल का वॉल्यूम है उससे भी उतना ही बड़ा ऑलमोस्ट शैडो भी है, और वॉल्यूम भी काफी रहा है. सो गुड अमाउंट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग बोथ हैज हैपेंड. सप्लाई अच्छा खासा आया है फरवरी के महीने में. तो इट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रल कैंडल. इसका पिछला तो ऑफ कोर्स बेरिश था, लॉन्ग अपर शैडो and a negative body in the month of January. So new monthly charts negative. Now वीकली चार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये जो बड़ी सी वीकली चार्ट की सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, जब तक ये नहीं टूट जाता, और ये ट्रेंड लाइन अप्रोक्सीमेटली 14,000 के आसपास टूटेगा, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूट जाता तब तक मिड टर्म व्यू नेगेटिव नहीं होगा. मार्केट अगर आप देखोगे तो प्रीवियस स्विंग हाई जिसके बाद एक करेक्शन आया था एंड देन मार्केट्स वेंट अप अगेन. सो इस पर्टिकुलर स्विंग हाई के पास ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है, व्हिच इज द क्लोजिंग अराउंड 14,565. तो कहने का मतलब 14,500 से 550 का रेंज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. अगर निफ्टी 14,500 से 550 के नीचे जाती है देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द मार्केट्स. और आप ये जो पूरा अप ट्रेंड का रैली देखोगे, ये जो बड़ा सा मैंने रेक्टेंगल बना रखा है रेड कलर का, वो नीचे भी बना रखा है. अब इस रेक्टेंगल के लेफ्ट में भी देखो और राइट में भी देखो. लेफ्ट में जब मार्केट जब चढ़ रही थी तो भी वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे. राइट में जो मार्केट्स यहाँ पे थोड़ी सी वीक रहे हैं तो वॉल्यूम्स काफी नैरो रहे हैं, काफी कम वॉल्यूम्स पे मार्केट की चढ़ावट हुई. और ये जो बीच का मार्केट है तो इसमें तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम कम रहा है. तो वॉल्यूम्स वर गुड ऑन अप, वॉल्यूम्स वर गुड ऑन डाउन एज वेल. बट ये जो फेज है वॉल्यूम का, ये जो फेज है प्राइस का, यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहे, दैट इज वन कंसर्न. दूसरा, थोड़ा सा इसको और रिफाइन करके अगर हम डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो ये एरिया जो बाउंस बैक हुआ था, इधर देखो, दिस डिड नॉट ब्रेक दिस हाई एंड दिस अगेन हैज बीन ब्रोकन. सो मोर और लेस इट्स काइंड ऑफ head and shoulder pattern on daily charts. Again, this is on a daily chart, not on a weekly chart. और इसका जो रेड लाइन है वो ट्रेंड लाइन है, that trend line has been broken. कहने का मतलब इट्स अ क्लियर रिवर्सल कैंडल ऑन डेली चार्ट्स. कहने का मतलब अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है डेली चार्ट्स के ऊपर. सो थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना है. शॉर्ट टर्म में हम बेरिश हो गए हैं, नेगेटिव है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म टू मिड टर्म वी आर ऑन सपोर्ट, लॉन्ग टर्म वी आर बुलिश. तो अभी हो सकता है हम पूरा का पूरा बुलिश मूवमेंट से बेरिश की तरफ मूव कर रहे हैं. तो टेक्निकली मार्केट्स आर एट सपोर्ट रेंजेस. अगर फर्दर कोई गिरावट आती है तो दिक्कत वाली बात है, वरना थिंग्स मे बी फाइन. हाँ, अभी खरीदने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है. देखते हैं बाकी के इंडिकेटर्स क्या कहते हैं. अब अगर देखा जाए तो मंथली चार्ट एज अगेन न्यूट्रल. मंथली में बहुत टाइम के बाद 60 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग आई है. वीकली में भी आरएसआई 60 के ऊपर है. वॉल्यूम्स अच्छे खासे रहे हैं. अगर आपको याद हो, मैंने थर्ड वीक में ही बोला था कि इट लुक्स लाइक कि मार्केट कहीं ना कहीं हॉल्ट कर रही है, स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है. नेक्स्ट वीक वी है रिवर्सल कैंडल, देन वी हैव अ कॉन्फर्मेशन ऑफ रिवर्सल कैंडल. नाउ अगर हम डेली चार्ट पे थोड़ा सा इंडिकेटर को स्टडी करें तो दिखेगा कि एक तो बॉलिंजर बैंड के नीचे की क्लोजिंग आ गई है. दैट्स वन थिंग दैट्स वरिंग काइंड ऑफ. तो अगर फर्दर गिरावट आती है, इट कुड बी अ स्टीप फॉल एंड मार्केट्स में एंड अप टेस्टिंग सम एनीथिंग बिटवीन 14,000 to 13,500.
हम इधर लो तक जा सकते हैं क्योंकि ये जो गैप एरिया है जिधर से सपोर्ट लिया था वो टूट चुका है। वॉल्यूम्स गिरते टाइम ज्यादा रही है, थोड़ा सा कॉशियस रहने का टाइम है। ये है स्ट्रेंथ एनालिसिस निफ्टी की। मंथली चार्ट पे तो बुल्स अभी भी फुल कंट्रोल में है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बुल्स आर गेनिंग मोमेंटम। वीकली चार्ट पे देखा जाए तो बस बुल्स की मोमेंटम थोड़ी फेड आउट हो रही है, बट अगेन ADX is still rising, so bulls are in full control. बट डेली चार्ट पे अगर ध्यान दिया जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बियर्स ऊपर जा चुके हैं, 33 पे है DMI, बट अगेन ADX is falling, ADX is not rising, so this strength has not converted into a full fledged selling. एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ एरोज मार्क कर रखे हैं, आप ये प्राइस देखो, यहाँ पे देखो रेड वाली लाइन ग्रीन के ऊपर निकली है, यानी कि ये बुल्स और बेयर्स का क्रॉसओवर हुआ है, बेयर्स ने कंट्रोल लिया है। फिर देखो गिरावट कितनी अच्छी खासी आई है। कई जगहों पे आप टच करके निकल गए, फॉर एग्जाम्पल दिस एरिया मार्केट डिड फॉल बट अगेन इट रिवर्स्ड अगेन। यहाँ पे बुल्स और बेयर्स का कंजंक्शन हुआ है, बेयर्स हैव टेकन ओवर, देन वी हैड अ गुड फॉल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स एंड लेटर एंड वंस अगेन सेम थिंग हैज हैपेंड। इधर देखोगे तो बेयर्स ने वापस से लीड ले लिया है, तो दैट इज वन थिंग दैट्स वरिंग मी। हाउएवर बहुत छोटा सा डिफरेंस है ध्यान देने का, अगर आप पहली बार का देखो तो ADX वाज राइडिंग बट दिस टाइम ADX इज फॉलिंग, दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो इट्स काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट सिचुएशन। जल्दबाजी नहीं करना, हम वैसे भी 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहे हैं, व्हिच क्लियरली मींस कि हाँ मार्केट्स ने अपना शॉर्ट टर्म का अप ट्रेंड को छोड़ दिया है। एक बार 20 DMA के ऊपर की क्लोजिंग आती है या कुछ फर्दर इंप्रूवमेंट्स होती है मार्केट के अंदर, तो हम देखेंगे हम सपोर्ट रेंज पे हैं। अभी पैनिक करने की सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, बट अगेन यू शुड स्टार्ट हेजिंग योर पोर्टफोलियो। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड हेजिंग। जब हम सेल करते हैं तो हम ओवरऑल मार्केट पे बेयरिश हो चुके होते हैं, सो इट्स लाइक कि बेचो जो भी माल पड़ा हुआ है, बट अभी ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। हाँ, प्रोटेक्शन जरूर लेना चाहिए क्योंकि ये जो स्मॉल, कोई भी रिवर्सल ऐसे नहीं होता कि एक ही बार में मंथली चार्ट रिवर्स हो गया, एक दिन में मार्केट 25-30% नहीं गिर सकती, राइट? So this is what happens. You first see negativity on the 5-minute chart, then you have 15-minute chart, hourly chart, daily chart, then it goes on to weekly chart, then it goes on to monthly chart. तो डेली चार्ट तो वीक हो ही चुका था, वीकली चार्ट भी थोड़ा सा वीक हो चुका है, सपोर्ट के आसपास है, और मंथली चार्ट तो बुलिश है ही है। सो इट्स फाइन, यू शुड बी हेजिंग योर लॉन्ग पोजीशंस, और अगर किसी वीक सेक्टर में आपके पास है पोजीशन प्रॉफिट में है, यू शुड बी थिंकिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग योर प्रॉफिट्स। Now let's move on to Bank Nifty. More or less Nifty और Bank Nifty का situation same है। As a matter of fact, Bank Nifty is way better than Nifty. ध्यान से देखिएगा, ये जो अपर ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी का, जिस पे रेजिस्टेंस मिल रहा था, जिसका ब्रेकआउट हमें मंथली चार्ट पे मिला था फरवरी के महीने, क्लोजिंग इसी के ऊपर हुई है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है, देन वी कैन सी सम मोर रिट्रेसमेंट एंड दिस ट्रेंड लाइन वुड एक्ट एनीथिंग बिटवीन 13,500 सॉरी 34,500 टू 34,000, 34,500 से 34,000 के बीच में ये ट्रेंड लाइन का एक्शन देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी का ठीक 300-400 पॉइंट नीचे जो करंट अपस्विंग है, जो बजट के बाद आया था, इसका 38% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। तो ऐसी जगह पे बैंक निफ्टी है जहां से बाउंस बैक मिल सकता है। तो अगर हमें बाउंस बैक मिलता है तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है इधर। अगर कोई हम शॉर्ट वॉट करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा ऑप्शंस के जरिए शॉर्ट कीजिए, फ्यूचर्स के जरिए अभी शॉर्ट मत कीजिए, या लॉन्ग भी करना हो तो ऑप्शंस के जरिए कीजिए, फ्यूचर्स के जरिए नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी है। जब तक एक क्लियर ट्रेंड ना हो तब तक आई वुड नॉट एडवाइज यू टू गो लॉन्ग और शॉर्ट ऑन फ्यूचर्स, दो यू कैन प्ले द शॉर्ट टर्म मोमेंटम विद ऑप्शंस। इसमें भी वही है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन, तो शॉर्ट टर्म में रिवर्सल लग चुका है। इंडिकेटर्स के बेसिस पे देखा जाए तो मंथली चार्ट थोड़े अच्छे हैं बैंक निफ्टी के, पहली बार हम 60 के ऊपर आरएसआई की क्लोजिंग हुई है, दैट्स वेरी गुड। वीकली आरएसआई इज अबव 60 एज वेल। डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो बॉलिंजर के बैंड के लोअर बैंड पे ही हमें सपोर्ट मिला है, दो वी आर ट्रेडिंग बिलो 20 डेज मूविंग एवरेज। 20 डेज मूविंग एवरेज जो है 35,800 के आसपास है, तो जब तक 35,800 36,000 ये जो गैप है, मार्केट ने जो जिस दिन एक्सचेंज बंद हुआ था उसके अगले दिन मार्केट खुला, इट मेड अ शूटिंग स्टार एंड देन it went back down. So this entire pattern of these three candles, this is evening star. We already have a reversal candle here, and then we already have another bearish pattern. तो दो bearish patterns बने हैं और गिरावट में वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है. So that is the reason why I don't want to take any long position in hassle. बाकी अगर हम स्ट्रेंथ पार्ट की बात करें तो आप वीकली और मंथली दोनों ही पे स्ट्रांग हो। वीकली पे थोड़ी सी वीकनेस क्रॉप अप कर रही है, बुल्स आर लाइक लूजिंग स्टेम, बैक टू बैक 2 हफ्ते से मार्केट में गिरावट है, और
एक अच्छे वॉल्यूम के साथ है, सो बी जस्ट कॉशियस। रेस्ट डेली चार्ट पे भी आप देखोगे तो वी आर एट अ कंजंक्शन, बुल्स एंड बेयर्स हैव मेट नाउ। इधर से अगर फर्दर गिरावट होती है, bears will cross over bulls and we will see some more correction on the downside, which may further take bank nifty around 33,000 levels. So let's wait and watch. कोई जल्दबाजी नहीं करनी है मंडे मार्केट ऑनवर्ड। नाउ लेट अस टेक अ लुक ऑन अदर सेक्टर्स। बाकी के सेक्टर्स पे देखते हैं कि आपको क्या करना है। ऑटो सेक्टर, बॉलिंजर बैंड डेली चार्ट पे देखोगे तो डाउन साइड टूट चुका है और 40 पे आरएसआई सपोर्ट ले रहा, एकदम 40 के पास है, 42 टू बी मोर प्रिसाइज। वीकली आरएसआई 60 के ऊपर है, 63 के आसपास है आपका मंथली आरएसआई। बट अगेन पिछले 2-3 महीने से कोई बहुत अच्छी बुलिश कैंडल नहीं बन रही है, बहुत बड़े बड़े शेडोज आ रहे हैं, यानी कि सप्लाई आ रहा है। तो कहने का मतलब थोड़ी दिक्कत तो है, सप्लाई तो अपर साइड में है। डेली चार्ट पे आप 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो, बॉलिंजर बैंड की वोलेटिलिटी ब्रेकआउट मिल चुकी है। हाँ, एक अच्छी चीज है कि पिछले कुछ दिनों की गिरावट में वॉल्यूम्स भी गिरते रहे हैं, तो अगर इधर से कोई सपोर्ट मिलता है तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग ट्रेड। बट आई विल सजेस्ट, आई पर्सनली डोंट लाइक गोइंग लॉन्ग अंटिल an index or any stock is trading below its 20 days moving average. So I will be like, on sidelines on auto. I will avoid auto. कंजम्पशन वी आर बेरिश। अगर आप देखोगे फ्राइडे की कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ा गिरावट, नया लो बनाया है, लो टूटा है प्रीवियस, सो वी आर बेरिश क्लियर कट। हाँ, आरएसआई के फ्रंट पे आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे हम साइडवेज हैं, मंथली चार्ट पे तो हम बुलिश हैं, बट पिछले 2 महीने की कैंडल शूटिंग स्टार बनी है, तो अगेन नॉट पॉजिटिव, सो कंजम्पशन भी अवॉइड है। एनर्जी थोड़ा सा ठीक है, अगर आप एनर्जी को देखोगे तो बुलिश ओवरऑल रहा है, लेकिन ये जो बुलिश मोमेंटम रहा है इसको वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा। पिछले हफ्ते का कैंडल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल था ऑन अ लो वॉल्यूम, अगर कोई क्रॉसओवर हमें इसका ऊपर या नीचे दिखता है, वी कैन बी हेडेड टुवर्ड सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट। इसका डेली मंथली वीकली तीनों ही टाइम फ्रेम पे आरएसआई 60 के ऊपर है, तो ब्रॉडली वी आर पॉजिटिव। बाकी ट्रेड के लिए अंडरस्टैंड, सी द टॉप बॉटम अप्रोच सजेस्ट ओवरऑल मार्केट हैज टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड देन यू हैव एन ओवरऑल sector to be positive or negative, then you find these stocks best to be in the same sector. So that is how you go. अगर ओवरऑल मार्केट नेगेटिव होगी और सेक्टर भले ही पॉजिटिव रह जाए, बट अगेन इट विल नॉट गिव यू दैट काइंड ऑफ मोमेंटम, इट विल नॉट गिव यू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, प्रॉफिट इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। तो आई लाइक पर्सनली ट्रेडिंग इन कंप्लीट साइड ऑफ द मार्केट, which means I would like to look for a sector that is in conjunction or in the view of, you know uh, the overall markets. Then I would like to pick up the best stock. For example, मेरे को अगर ऑटो सेक्टर में सपोर्ट के लिए पिकअप करना होगा तो I'll prefer going long into Tata Motors. अगर मेरे को एनर्जी में लॉन्ग करना होगा तो I'll look for some good stocks. बट अगेन ये सब मैं तब करूंगा जब मेरे को निफ्टी पे लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा। अगर निफ्टी ही पॉजिटिव नहीं है तो चाहे वो ऑटो हो या एनर्जी हो या कंजम्पशन, आई वुड लाइक टू अवॉइड। इफ आई हैव अ शॉर्ट ट्रेड ऑन निफ्टी, देन probably I can look for consumption on which we are bearish. We can look for pharma on which we are bearish. We can look for IT on which we are bearish. So that is what exactly I mean. I want to trade into a stock that has got the same view as its underlying sector, and then the sector should also have the same view as we have on the nifty. तो एक तरीके से कंप्लीट सारे के सारे चेक बॉक्सेस आपके टिक मार्क हो जाते हैं। दैट इज हाउ आई लाइक टू, दैट इज व्हाट a good trader does. That's what we call a top down approach. Next sector would be financial services. Financial services short term view is bearish, however long term view is positive. वीकली डिक्लाइन हो रहा है, वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे 3 हफ्तों से डिक्लाइन है, बट अगेन वॉल्यूम्स आर डिक्लाइनिंग टू। डेली आरएसआई सपोर्ट रेंज में है, वीकली और मंथली आरएसआई पॉजिटिव है, सो कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो प्राइस रेंज है बहुत अच्छे सपोर्ट के पास आ रहा। अगर हमें कोई बढ़िया ट्रेड मिलता है, अगर हम सपोर्ट, बहुत ही लो रिस्क ट्रेड हम कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। बट अगेन एज आई सेड 20 डेज मूविंग एवरेज के नहीं। सो प्रॉब्लम यही है, सारे सेक्टर सारे के सारे इंडाइसेस दे ऑल आर ट्रेडिंग मेजरली बिलो 20 डेज मूविंग एवरेज, एंड दैट इज नॉट राइट। शायद अगर आपको एक अपस्विंग भी मिलेगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। दी अपसाइड मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू होने के लिए एक 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट्स का होना बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब सारे के सारे सेक्टर्स नेगेटिव हैं तो होगा क्या कि अगर कोई ऐसा न्यूज आता है जिसकी वजह से कोई गिरावट आती है, दैट गिरावट कैन बी वेरी वेरी स्टीप। वो एक जोर से गिर सकता है मार्केट, बिकॉज सारे के सारे सेक्टर सपोर्ट पे बैठे हुए हैं।
सपोर्ट लेगा तो एक बहुत अच्छा बाउंस बैक आएगा, क्योंकि सब कुछ ही चढ़ रहा होगा। अगर गिरावट होगी तो सब कुछ ही गिर रहा होगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू ट्रेड विथ ऑप्शंस, नॉट विथ फ्यूचर्स, क्योंकि ऑप्शंस में रिस्क आपका कम होगा और मोमेंटम तो एंजॉय कर ही पाओगे आप। So that's about finance sector. IT, as we said, 2 महीने से शूटिंग स्टार कैंडल्स लगातार बन रही हैं। वीकली चार्ट पे आप नया लो बना रहे हो, डेली चार्ट पे तो 20 डेज मूविंग एवरेज का स्लोप नेगेटिव हो चुका है और डेली चार्ट पे RSI 40 के नीचे जा चुका है। सो इट्स लाइक बेयरिश ऑन डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट में एकदम सपोर्ट के पास है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है अगर ये कल के ही सेशन में हमें कोई अच्छी क्लोजिंग दिखती है और अच्छा अगर अपसाइड दिखता है, तो हम फ्राइडे के लो का, या कल अगर कोई सुबह सुबह लो बना के ऊपर चढ़ रहा होता है, कोई आवरली चार्ट के बेसिस पे ट्रेड बनता है, देन वी कैन थिंक ऑफ गोइंग सम लॉन्ग्स विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एज द बॉटम। हमें जो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना, क्योंकि दिस वुड बी अ कॉन्ट्रा ट्रेड। रिमेंबर 20 डेज के मूविंग एवरेज का स्लोप ही डाउन साइड है, तो अपसाइड में आपको सप्लाई आता रहेगा जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ेगी। सो दैट्स अबाउट आईटी। मेटल सेक्टर इज वेरी गुड एंड बुलिश। महीने की क्लोजिंग बहुत अच्छी ऊपर हुई है, अपसाइड में वॉल्यूम्स भी ठीक रहे हैं। दो थोड़ा सा वॉल्यूम लास्ट कैंडल पे कम है, वीकली पे, मंथली पे तो ऑफ कोर्स कम है। पूरा ओवरऑल मार्केट का वॉल्यूम कम है फरवरी के महीने में, तो मेटल पे वॉल्यूम कैसे अच्छा हो जाएगा। सो मेटल्स के भी वही सिचुएशन है, वॉल्यूम्स आर काइंड ऑफ सबड्यूड ऑन द मंथली चार्ट एज वेल। और now let us take a look on, after metal we have PSU banks काइंड ऑफ ओके हैं। अगर आपके पास पीएसयू बैंक में पोजीशन है, यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग सम स्टॉप लॉसेस। डेली पे भी आप 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हो, 60 पे आरएसआई सपोर्ट ले रहा, वीकली पे आप देखोगे आरएसआई 60 के ऊपर है, बट लॉन्ग टर्म अभी भी आरएसआई 55 पे, व्हिच इज साइडवेज। तो कहने का मतलब अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इट कुड बी अ डिफिकल्ट टाइम फॉर पीएसयू बैंक्स गिर सकते हैं। तो थोड़ा सा पोजीशन जरूर रिड्यूस करना है, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही कि लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव नहीं हुआ है, अभी साइडवेज है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है, मिड टर्म पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में थोड़ी अभी चीजें बची हुई हैं। रियलिटी इज गुड, थोड़ा वॉल्यूम कम है, पिछले कुछ हफ्तों में पूरी दुनिया में वॉल्यूम कम है। आरएसआई अगर आप देखोगे तो 60 के नीचे आ चुका है ऑन ऑन डेली चार्ट। बाकी वीकली चार्ट पे आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर है, मंथली चार्ट पे आरएसआई 64 पे है। तो इट्स अ गुड स्टॉक फॉर नाउ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रियलिटी सेक्टर इज आल्सो गुड। नाउ अब ऐसे में करना क्या है, सारे सेक्टर के बारे में तो हमने समझ लिया, ट्रेड कहाँ करना है। देखिए सिंपल सीधी सी बात है, अभी हमारे पास ऐसा कोई बुलिश व्यू नहीं है। लेट मी हेल्प यू विद दिस। ओके, तो करना ये है, समझिए मार्केट पे व्यू हम थोड़े से कॉशियस हैं, सारे के सारे सेक्टर्स कॉशियस हैं, बस एक आधे स्टॉक्स हैं, एक आधे सेक्टर्स है, लाइक रियलिटी ठीक दिख रहा, मेटल ठीक दिख रहा, बाकी सब कुछ नेगेटिव दिख रहा और कुछ काफी सपोर्ट पे दिख रहा। तो करना ये है, जो आपकी लॉन्ग पोजीशन है उनको हेज कीजिए और वेट कीजिए, इंडेक्स से हेज कीजिए और वेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, ना लॉन्ग करने का ना शॉर्ट करने का। पोर्टफोलियो हेज रहेगा, गिरावट में आपको समझने का मौका मिलेगा, मार्केट में फर्दर गिरावट होगी, ट्रेड विद पुट ऑप्शंस ऑन द डाउन साइड। और चूंकि हम अभी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू हमारा पॉजिटिव है, वीकली और मंथली चार्ट पे अभी भी हम पॉजिटिव है, तो हम करेंगे ये इस हफ्ते की आने वाले कुछ दिनों तक कि कुछ अच्छे सेक्टर्स और अच्छे स्टॉक्स के, चुनिंदा स्टॉक्स को अपने रेडार पे रखेंगे, अच्छे सपोर्ट प्राइसेस पे हम इनको एक्यूमुलेट करेंगे। अगेन एक्यूमुलेशन ऑलवेज हैपेंस ऑन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर आप नॉर्मली कोई भी स्टॉक खरीदते हो 10 लाख रुपए का, तो शायद एक्यूमुलेशन आप करोगे मे बी 5, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार, 40 हजार, ऐसे छोटा 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 क्वांटिटी उठाते रहोगे जब तक गिरावट में है। डोंट यू नेवर ट्रेड इन बिग क्वांटिटी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मार्केट। सी, जब मार्केट में गिरावट आती है तो आपको वैल्यूएशंस अच्छी मिलती है, प्राइसेस सस्ते मिलते हैं। फॉर एन इन्वेस्टर, जब हम स्टॉक्स लॉन्ग पोजीशंस की बात करते हैं, तो इन्वेस्टर को भाव अच्छा चाहिए होता, ट्रेडर को भाव महंगा चाहिए होता है, कि उसको मोमेंटम चाहिए, ट्रेडर को चाहिए शॉर्ट मनी, क्विक मनी, थिक मनी। सो दैट्स हाउ इट इज। सो एज एन इन्वेस्टर आई वुड लाइक टू use this fall or correction as a accumulation opportunity for good quality stocks, but as a trader I would like to hold on to
to my position as of now, and I would love to trade index options only for now. And though, in case the fall continues, we can look for some stocks in the sectors that we discussed about, the negative sectors like consumption, pharma, IT. These are the sectors where we can be looking at, and even some financial stocks as well. बाकी मैं आपको एक दो स्टॉक शेयर कर लेता हूं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू. जिन स्टॉक पे आप नजर रखना गिरा करेक्शन में खरीदने का. जैसे मेटल स्टॉक है, टाटा स्टील है, ये देखो डेली चार्ट, वीकली चार्ट पे क्या बढ़िया वॉल्यूम रहा है, बुलिश कैंडल भी है. डेली चार्ट पे भी चीजें ठीक हैं, थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है, बट मोर और लेस इट्स ट्रेडिंग इन इट्स ऑल टाइम हाई रेंज. नाउ ऑल टाइम हाई, एक सेकंड, आई गेस आई डू नॉट हैव माय स्क्रीन शेयर्ड. लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. तो ये जैसे स्टॉक आप देख रहे हो, टाटा स्टील है, ऑल टाइम हाई के आसपास है. मार्केट ऑलरेडी 7-8% नीचे है अपने हाई से. कहने का मतलब क्लियर कट आउट परफॉर्मर है टाटा स्टील. आप इस पे नजर रखना गिरावट में एक्यूमुलेट करने के लिए. देन यू कैन टेक अ लुक एट टाटा मोटर्स एज वेल. बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा. ऑटो में सिर्फ टाटा मोटर्स पे ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं. रिलायंस अवॉइड फॉर नाउ. रिलायंस में एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल मिला था हमें, बट अगेन क्लोजिंग उसके नीचे आ गई है. बट अगेन जो नेगेटिव क्लोजिंग है उससे वॉल्यूम कम रहे हैं, तो थोड़ा देखने वाली बात है. वीकली चार्ट पर रिलायंस में वॉल्यूम काफी ज्यादा है. स्पिनिंग टॉप कैंडल है. अगर फर्दर क्लोजिंग हमें वीक की मिलती है 2100 के ऊपर, देन रिलायंस कैन गुड एन अपसाइड रिटर्न, और नीचे हो सकता है जोर से गिरे भी. एंड देन आई वुड लाइक टू कीप हिंडाल्को ऑन माय रेडार टू. हिंडाल्को भी बहुत अच्छा है. डेली चार्ट पे एक बेयरिश हरामी पैटर्न बना है, बट इसमें वॉल्यूम कम है, तो थोड़ी बहुत करेक्शन. तो अगर देखो, अगर ओवरऑल मार्केट में करेक्शन होएगा तो ना तो हिंडाल्को ने बचना है, ना जेएसडब्ल्यू स्टील ने, ना टाटा स्टील ने, ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने. सारे स्टॉक्स में गिरावट होगी. तो ऐसे में ये जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, इन्हीं में सबसे पहले रिकवरी आएगी जैसे ही मार्केट में सपोर्ट मिलेगा. तो इन पे ध्यान रखना है एक्यूमुलेशन करने के लिए. accumulation करने के लिए टाटा मोटर्स, आई विल रिपीट फॉर यू, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील आर द स्टॉक दैट यू शुड बी लुकिंग एट. बाकी अभी कुछ और पे ध्यान नहीं देना है. वी विल अवॉइड एनीथिंग एल्स राइट नाउ. So that would be all in this week. I hope I gave you a clear-cut perspective, a visual on what you should be doing in the market for the next week, how you need to be planning. Just wait and watch for the markets to confirm which direction it is going to sit further. So that would be all in this weekly mastermind show. In case you want to have your stocks included in the next weekly mastermind show, feel free to write me back. I'm always reachable on WhatsApp, Instagram, and Facebook. Plus, you can always call me on 9654998409. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Happy trading. Stay healthy, stay wealthy. Abhishek Raj signing off.